गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। नाइस। यस सर। हाँ, यस गुड सर, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। यस। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर, यस। गुड नाउ, इवनिंग। टुडे पीसीटी कॉम्बो पोजिशनल। पोजिशनल। I have taught intraday, price level. I have also shared discussion video. Have you watched sir? आप लोगों ने देखा है? How to take the trade based on sir यस सर। gain price level. Okay, so I have ओके। already taught. I have already taught intraday time calculation using sir Gangila, using Excel method, price time square, hexagonal method, how to calculate mother time, and now gain angular price level पर कैसे हम लोग काम करेंगे. I have taught now BTST. I have taught. Apart from these, I have taught one डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड की, कैसे डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड. अनदर आई विल ऑल्सो टीच डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड वेयर प्राइस एंड सर प्राइस टाइम वॉल्यूम कॉम्प ये प्राइस एंड वॉल्यूम कॉम्प्रेस एंड stock will blast within. I will teach that method also. Now, today I will start TCD combo. What is the meaning of the combo? Suppose everyone knows, sir, price action. So if I will say, suppose it is the chart of a polygon. First time, first time, price has come here and touched this one. First time it has touched and then touched and then touched and then here touched. So can you say कि price movement, every price movement and surprise behavior is also different. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस बिहेवियर? जैसे ये फर्स्ट टाइम आकर के इसने सबसे पहले यहां पर आकर के टच किया है, उस टाइम प्राइस की मूवमेंट अलग था. टाइमिंग वाज ऑल्सो डिफरेंट. पॉलीकैब न्यूज एंड स्टॉक वाज ऑल्सो डिफरेंट. ये सुनो, उस टाइम का समय कुछ और था, मार्केट का बिहेवियर कुछ और था. सो व्हेन इट हैज टच्ड द फर्स्ट टाइम, everything was different. Another, after a period, certain period of time, when it has touched here again, at that time, again market behavioral, polycab, all these things are also different. Now, after a long time, it has also come answer touched here. Now, so can you say कि time is a different behavioral movement, market structure, scenario, stocks, everything being a different. मतलब डिफरेंट सिनेरियो में भी प्राइस इज गिविंग ऑन
respect to the level that is 6650। हर कैंडल के बाद मार्केट की बिहेवियर अलग होती है। आज मार्केट, आज पॉलीकैब ने जिस तरह से मूवमेंट किया, ये मूवमेंट कल इस तरह की नहीं होगी। अगेन इट विल शो द different movement. So every day is a new day for any stocks, for any kind of a movement. Again, after a long time, it has come, and again, after different market structure or your scenario, it has again respected. Again, when the price has come and touched here, it has again respected and has not broken, and it has moved upside. So can you say डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है, बिहेवियर कुछ और है मार्केट का। नो, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सिनेरियो, इट इज रेस्पेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज 6650, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स। सो कैन यू से डिफरेंट सिनेरियो में भी ये प्राइस, इट इज मोर एंड मोर पावरफुल प्राइस, यस और नो? Yes, sir. That's why market is respecting every time. So this price has certain speciality rather than this price, or so rather than this price, rather than this price. So when the price after a different structure, different time period, respecting the same level, we can say कि प्राइस की यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, मतलब कि ना यहाँ पर बन रही है, जो 6650 के अराउंड मार्केट में एक एक अच्छी खासी कॉम्बिनेशन है। तो अगेन प्राइस यहाँ तक आकर के कोई अगर अप साइड इस टाइप की, ठीक है, बुलिश फॉर्मेशन करती है, तो अगेन आई विल से दैट इट हैज अगेन respected that level and now it is ready to fly. So it is your combination of the combination, मतलब different structure, different scenario, different market movement, but indicating towards the a powerful price level that is 6650 in a polycap. So it is, you can say a, मतलब ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइस का एक कॉम्बो बन रहा है ना। सिमिलरली, यूजिंग डिफरेंट मेथड, एंगल्स मेथड, मून साइकिल मेथड, गैन स्क्वायर ऑफ नाइन मेथड, एंड ऑल्सो angle method, moon square, and some others method. If various method, using various method, if you were calculating or some astro methods, I am also saying रेडिक्स मेथड, ट्रांजिट, ये मैं सब मैं एस्ट्रो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टॉक्स का एनिवर्सरी मतलब देख करके, लगना देख करके, कैसे हम लोग पूरी साल, 10 साल की साइकिल हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ओके सर? हेलो? Okay. Yes, sir. Yes, sir. रेडिक्स एंड ठीक है सर। हाँ रेडिक्स जी, हाँ एंड जी सर। ट्रांजिट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई स्टॉक्स की बर्थ की लिस्टिंग डेट पर 10 साल की पूरी साइकिल आज हम लोग निकाल करके कैसे रख सकते हैं और इसकी कॉम्बो बना सकते हैं। तो मई आई मीन टू से मेथड इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट इफ इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द सेम डेट, मतलब यहाँ पर जैसे सेम डेट की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स, ठीक है, टुडे डेट 7 अप्रैल, again it is indicating towards 20th April. So can I say कि method is a different, input is also different, मतलब किसी ने ये वाली टाइम से लिया है, किसी ने स्विंग की जो सबसे हाई बनी हुई है अभी तक, स्विंग हाई, वहां से उन्होंने कैलकुलेट किया है। किसी ने नाइन स्क्वायर की जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है, या फिर ठीक हेक्सागोनल है, वहां से उन्होंने कैलकुलेट किया। तो date can be calculated from a different method, but if it is indicating towards the same date, can we say कि this date becomes more effective and sir powerful? Yes or no? And Yes, sir. chances of
फॉर्मेशन सम स्विंग टॉप एंड ऑल्सो बॉटम इज देयर। यहाँ पर कुछ अच्छी खासी स्विंग, अगर एग्जैक्ट नहीं भी बने तो अच्छी खासी स्विंग या टॉप एंड बॉटम कुछ वहां पर बनने की या अच्छी खासी रैली की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैंने सर प्राइस में बोला कि अगर डिफरेंट बिहेवियरल पर भी सेम प्राइस, तो यहाँ पर एक एक हम लोग मजबूत प्राइस एक्शन, मतलब सॉलिड प्राइस एक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं कि राइट नो कोई सॉलिड बंदा वहां पर बैठा हुआ है, या कोई करोड़ों की वहां पर मतलब कि ना सौदे लगे हुए या कुछ अच्छी खासी वॉल्यूम्स है, ठीक हो। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, बट वी नो कि मैक्सिमम टाइम मार्केट है। तो सिमिलरली दिस डेट इज पावरफुल, सो इट विल शो द मतलब कि वहां पर कुछ हो, स्विंग टॉप स्विंग बॉटम या कुछ, मतलब इसके बाद में हम लोग कुछ एग्रेसिव रैली वी कैन कंसीडर। सो इट इज कॉल्ड टीसीटी कॉम्बो। टीसीटी कॉम्बो मीन्स ट्रेंड चेंज डेट और ट्रेंड कंटिन्यूएशन डेट, बट maximum time we can consider it is a trend change date. Now it is clear, sir. बिल्कुल सर। Yes, sir. Yes. Now, so in this method, I will teach you angular method, moon cycle method, Gann square method, and some other methods to make a combination. Today, I will teach. I am just starting angular method. Okay. Now, next day, I will teach you how to make the GCD date, Gann combo dates using moon cycle and all these dates. Now, so in this method, now इन दिस मेथड यू नीड, यहाँ कुछ मेरी कंटेंट्स मिसिंग है, तो खैर इससे कुछ भी मतलब समस्याएं नहीं है ना। इन दिस मेथड कुछ लोगों ने पहले की भी क्लास की है जिन्होंने देखा हुआ है, बट वॉच एंड से लिसन केयरफुली what I have taught. I have already forgotten due to my father expiry. Now watch and listen carefully. I will teach only to find the date today within these two class, today and then, and then I will teach how to take the trade. आज हम लोग उसको only finding करेंगे ना। 6 combo, 5 combo, 12 combo. How will you make this combination? So, then angular method, price time square answer hexagonal method I have combined. So, based on this method, you need 5 inputs: monthly high price, monthly high date, monthly low price, monthly low date, and the number of trading days required between high and low. You need all this data. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी मैं इसको समझा दूं आपको। ना टीसीटी component. First of all, you can watch here 4 different tables। एक एक में दो दो, मतलब यहाँ पर डेट है, लो एंगल हाई एंगल, लो एंगल हाई एंगल, लो एंगल हाई एंगल, इट कंटेन्स एवरी वन मेथड इज डिफरेंट बट द डेट may come same now. So first of all, I have taken monthly high, monthly low, all these things. Now next, what it has taken the price range, हाई प्राइस टू लो प्राइस। व्हाट इज द प्राइस रेंज इट हैज मूव, कितना प्राइस रेंज इसने मूव किया है, कितने कैलेंडर डेज में मूव किया है, कितने ट्रेडिंग डेज। कैलेंडर डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड यूजिंग द सीट्स, बट द ट्रेडिंग डेज इज वेरिएबल, सो यू हैव टू पुट दिस मैन्युअली। नाउ when I have calculated the price range between the high and low, I have subtracted this and this. Calendar days automatic calculated between this and trading days. I have plot जहां से ये इनपुट ले रहा है। Now next, I have converted this to the degree using the price time square method what I have already taught,
मॉड स्क्वायर रूट ऑफ दिस -2 to 5 360 जो मैंने पढ़ाया है। और यहाँ पर एक मेरा लगा हुआ है कि राउंड फिगर की डेसिमल की टू, मतलब कि ना आफ्टर आफ्टर डेसिमल टू, मतलब कि ना ठीक है पॉइंट्स तक इसको आप मतलब कि ना राउंड अप कर दो, तो इट इज द राउंड फंक्शन। आई हैव कन्वर्टेड एंटायर इनटू द डिग्री now. So here I have got three inputs there now. So if you will observe that what is the minimum angle or low angle 17.95, what is the high angle 215.91, this is the high and this is the low angle now. So this is my maximum angle, this is my yeah, it is my minimum angle between this and it is the maximum angle now. WD Gann has told that what he has told that when the when price time square और your hexagonal structure, सपोज हम लोग प्राइस टाइम स्क्वायर मेथड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने एक्सेल पर भी देखा होगा, ठीक है सर, गैंजिला पर भी आपने क्लियरली यू हैव वॉच्ड। नाउ ही हैज टोल्ड दैट एनी degrees of a trend line, suppose it is 0, I have drawn it a, if I will take this 0 degree, just suppose 0 degree, so as per 45 degree की जो हमारी it, they have given the name trend line 0 to 45, तो दे हैव टोल्ड दैट व्हाट द नंबर प्लेस्ड ऑन द 45, अगर मैं नंबर को प्लेस करूं तो 2 4 6 इस तरह से कुछ नंबर प्लेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर स्क्वायर नंबर प्लेस होते हैं, 3 9 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 ईयर। So they have told that on the same degree of the trend line, अगर एक ही डिग्री की ट्रेंड लाइन है, इस पर जितने सारे नंबर्स प्लेस्ड होते हैं दे आर कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द सेम फैमिली। सो all these numbers placed on 45 degree 0 to infinite numbers कितना भी बड़ा करे, they have told they are the फैमिली का, वो एक ही फैमिली का सारे नंबर्स, वो मतलब कि एक ही फैमिली की मेंबर्स होते हैं। सो ही हैज गिवन द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड दैट डिग्री कि कौन कौन से नंबर प्लेस्ड है। ही हैज गिवन फॉर्मूला 2 into n प्लस 2 into a डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.25 इसका स्क्वायर, ही हैज गिवन दैट फॉर्मूला। अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे WD ज्ञान को तो ये समझ में आ जाएगा ना। सो अगर सपोज इफ आई विल ट्राई टू कैलकुलेट 17.95 की एंगल जो है, सपोज ये मेरे लिए स्क्वायर स्ट्रक्चर है, 0 डिग्री स्क्वायर में मतलब इसको बन, तो 17.95 अगर ये है 17, तो इस नंबर पर कौन कौन सा प्राइस या कौन कौन सी वैल्यू प्लेस्ड है, हाउ विल यू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन वेयर एन इज द फर्स्ट, एन का वैल्यू होता है कि फर्स्ट वैल्यू व्हाट इज प्लेस्ड, एंड ए मींस एंगल, सो एंगल मींस 17.95 एंड एन मींस 1, 1 मींस फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट, एन मींस एन व्हेन एन विल बी 2 इट मीन्स सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, मतलब एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो हमें सारे नंबर्स ऑब्टेन मतलब हो जाते हैं कि उस फैमिली मेंबर्स के कितने नंबर्स हैं, मतलब कि ना कितने मेंबर्स हैं। यू कैन कैलकुलेट अप टू इनफाइनाइट। सो व्हेन आई हैव टेकन दिस डिग्री की इस डिग्री पर कितने सारे नंबर्स प्लेस्ड हैं, आई हैव गॉट दिस फॉर्मूला देयर। 2 into E6 means, E6 means this 1. E6 means 1. 2 into E6 plus this means what? G3 divided by 365 plus 1.25 इसका हम लोग स्क्वायर। सो 17.95 डिग्री पर द फर्स्ट नंबर प्लेस्ड इज 11.21, सेकेंड नंबर प्लेस्ड इज 28.60, थर्ड नंबर प्लेस, तो यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन
First time 1, second time 2, third time 3, then fourth, then fifth, then sixth. Now, similarly, I have changed this to high angle. तो हाई एंगल पर फॉर्मूला सेम है, एंगल यहां पर चेंज हो जाएगा 215.91 हाई एंगल, एंड एन का वैल्यू इट विल बी फर्स्ट टाइम 1, सो यू विल गेट द formula there, this one. So 215 degree per, what the first value placed is 19.65, and this and that and that and that and that. Okay, I have taken maximum 6 data. इसके बाद में डेट काफी अलग आने लगती है, डिफरेंट, तो आई हैव लेफ्ट दिस वन नाउ। And प्लीज हेलो म्यूट योर सेल्फ। हाँ, हेलो। सर, 1.25 क्या है? क्या है नहीं है वो मैं सर बाद में बताता हूँ, फॉर्मूला में आप जाएंगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, आप ओके। मुझको शेयर करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक हो। ओके। हम्म, तो क्या है, आप मुझको सर व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ से उन्होंने लिया, कैसे फॉर्मूला को डिराइव किया, क्योंकि फॉर्मूला डिराइवेशन इज नॉट द पार्ट, वी आर पार्ट टू मेक द कॉम्बो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एंटायरली डब्ल्यू डी गैन या एंगुलर मेथड्स। ओके तो सर। हम लोग इसको मतलब कि हम लोग कॉम्बो डेट्स को डिराइव करें। इफ यू वांट टू लर्न द फॉर्मूला, व्हाट्सएप में आई विल शेयर द लिंक हाउ ही हैज डिराइव्ड, ओके। Now, so if I have taken the monthly high date 21st Jan, and if I will add with the lower angle, I will get the first date. And then similarly, low date plus this, I will get the this date. Means monthly high date plus this, I have got this date. Monthly low plus this angle, I will get another. Similarly, plus this, I have got this date. This date, this date, this date, this date. Okay, now. So, based on this, I have derived first table. Similarly, here also done. Okay, now. In the next table, what it has done there. Now, same thing has been done here, but here I have taken the price range, कितना प्राइस रेंज कितना डेज में मूवमेंट किया ना। हियर आई हैव टेकन ओनली द प्राइस, मेथड अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। तो हाई प्राइस को आई हैव कैलकुलेटेड, आई हैव सर कन्वर्टेड टू डिग्री, तो मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला सेम है। आई हैव ऑल्सो कन्वर्टेड दिस टू डिग्री ना। Within this four input data, which is the minimum? Now I have received here two kinds of data. Number one data belongs to the price. Number two data belongs to the time. Calendar days means day or time, and price. तो प्राइस में जो सबसे मिनिमम एंगल क्या है, तो मिनिमम एंगल है 71.43। मिनिमम प्राइस एंगल इज दिस, एंड मिनिमम दोनों में से टाइम एंगल, विच वन इज द टाइम एंगल, 135 डिग्री। सो आई हैव टेकन बोथ द मिनिमम। हियर आई हैव टेकन one minimum, one maximum. Here I have taken only two minimum. And then using the same method, I have derived all this one कि 135 degree पर which numbers are placed. I have completely derived all this data. And when I have added with the high and low date, I have got all the dates. Similarly, high angle 71.43 पर कौन कौन सी वैल्यू प्लेस्ड है, I have calculated this, and similarly added, I have completed this one. Now, so these two table completely based on the price time square, or you can say a square structure, where I have used a square method to convert number to a degree. Now, another importance WD Gain has given to convert number to a degree based on the hexagonal method. So I have applied hexagonal same method, but
Everything is same here, only conversion of number to a degree is different. तो अगर मैं फॉर्मूला अलग करता हूं तो मेरे लिए वैल्यू भी मतलब अलग हो जाती है। मैंने सेम स्ट्रक्चर को डिराइव किया हेक्सागोनल पर, विच आई हैव टॉट यू। यहाँ 79.5 आई हैव गॉट, हियर फॉर्मूला इज डिफरेंट, आई हैव गॉट 103.44। सिमिलरली हियर आई हैव गॉट दिस, एवरीथिंग इज सेम, ओनली फॉर्मूला इज डिफरेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आई हैव अप्लाइड। नाउ similarly, here I have taken within these three minimum angle 103 and maximum angle 334, and then I have also derived कि इस एंगल पर कितने सारे वैल्यू प्लेस्ड है और इस एंगल्स पर हाउ मेनी वैल्यूज प्लेस्ड देयर। Similarly, here everything remains same, only conversion is different. So here I have got again four data, out of which two are based on price। दो क्या है कि प्राइस पर बेस्ड, हाई प्राइस लो प्राइस, तो टू आर बेस्ड ऑन प्राइस। सो इन दोनों में विच इज मिनिमम प्राइस आई हैव टेकन, एंड ऑल्सो बिटवीन दिस टू डेटा कैलेंडर डेज आई हैव टेकन कि दोनों में मिनिमम टाइम एंगल किसका है, एंड देन आई हैव कन्वर्टेड एंटायर थिंग्स इनटू द कि ये वाली डिग्री पर क्या नंबर प्लेस्ड है, इस पर क्या नंबर प्लेस्ड है। नाउ इट इज क्लियर। Hmm. Now, confirmation table data comes from another sheet which is not included, but I will include also unhide. Again, hide it. Now, and it also contains another data. Unhide. Now, so confirmation table data is also derived from these dates which I have told कि based on your Ganjila 225 degree, all these numbers have a squaring relation, so its importance is more. So similar data has been placed in the Excel, and this confirmation data has more importance placed on 225 degree। तो ये वहां से लिया हुआ सिक्स डेटा, अप टू सिक्स डेट्स 1 2 3 4 5 6 हाई डेट से लिया हुआ है। ये जो लिया हुआ है यूजिंग दिस मंथ हाई, हाई डेट्स इज योर जीरो डिग्री, zero, and then 22 23 based on. Similarly, this is based on the low dates monthly low, which is placed at the exact zero center, and then it has been increased by one, and what I have got on 225 पर जो हमें मिला है, I have taken this as a confirmation table. Now it is clear. Okay, sir. ना, तो ये हम लोग दोनों को अभी हम लोग हाइड करके रख देते क्योंकि सारा वो मतलब कंफ्यूजन। if you want, there are also so many hidden fields also there, you can go and format unhide the sheet and you can learn। अगर नहीं समझ में आती हो तो मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दिस, if I will say, can you know, anyone knows, WD Gan has given, you just take a screenshot, otherwise I will share WD Gan। एक सेकंड सर में। Now, WD Gan has given importance to some significant solar dates which is fixed in an year. Now, for example, suppose he has given some important dates of every month. For example, March month, 21st March he has given.
देन ही हैज गिवन 6 अप्रैल स्टैटिक डेट्स, जहां पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम मार्केट में कुछ न कुछ रिवर्सल हमें देखने को मिलती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 21 मार्च, तो 21 मार्च, तो अभी क्या है कि न्यूज बेस है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी जैसे 6 अप्रैल के अराउंड उन्होंने बोला है कि एक मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, तो इससे एक दो दिन आगे पीछे एक मार्केट में सर बॉटम क्रिएट होकर के रैली क्रिएट। तो ऑल दिस डेट्स एक्चुअली ही हैज गिवन हंड्रेड्स ईयर अर्लियर। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, वो हम लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे, कवर करेंगे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू फाइंड द निफ्टी डेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बीइंग स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द मार्च। सो इफ यू वांट टू फाइंड द मार्च डेटा, only you have to do a smaller things there. सर माय ऑडियो इज क्लियर? आवाज आ रही है सबको क्लियर? जैसे ये यस सर, यस यस सर। सर। यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes. तो ओनली आपको एवरी वर्क आई हैव डन इन द एक्सेल, व्हाट ओनली यू हैव टू डू इज व्हाट, आज मैं ट्रेड नहीं बताऊंगा उसको, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करनी है, स्विंग में कैसे, वो मैं 2 क्लास के बाद में जब हम लोग 5 6 7 कॉम्बो बना लेंगे, तब हम लोग उस डेट्स को इंट्राडे और स्विंग में ट्रेड करेंगे। आज नहीं बताऊंगा मैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी ना। इट इज माई एंटायर 5 मंथ डेटा आई हैव टेकन ना। What the high it has made? It has made the high 26341.20। Only you come here, मैंने सारा मेहनत करके रख दिया है, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना है। एंड व्हाट वाज द डेट इट हैज मेड हाई? 3rd Feb 2026। Now, can anyone tell me when it has made the low in the entire month? This month data. This is the low, I think so. Yes, it is the low. And low price 24571.75. 24571.75. And what was the low फर्स्ट date? प्राइस सर। फर्स्ट फेज। हाँ, थोड़ा कोई मुझको अगर बोले तो एकदम जी सर। आसान होगा। अगर कोई लैपटॉप के सामने है तो फटाफट होगा मैं एकदम हूँ काम, सर। तो मैं, यस। तो हियर, if you will analyze closely here, when I have, you have to measure low to high कितने मतलब ट्रेडिंग डेज में बने हैं। कैलेंडर डेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, सो आपको एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक हो ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ी सी हाइड कर देता हूँ फिर से। अच्छा, अभी के लिए देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। सो it has made the low here and it has made the high here. Don't do Venkatesh sir, please. Please concentrate what I am sir teaching. Don't do all these things. No. So, if you will analyze that, it is indicating 2 bars. But actually, it is not the 2 bar, it is your 3 bar. 1, 2, 3. Why? Because it starts counting from 0, 0, 1, 2. तो एक बार जो आती है उसको हमें इंक्रीज करना होगा, तो यू विल हैव टू पुट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज 3 इन दिस, योर एंटायर वर्क इज कंप्लीटेड नाउ। यू हैव टू कम हियर इन दिस मेथड। आपको क्या क्या देखना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले मैं इसको तो हाइड कर दूंगा, एक सेकंड। उस ये आती है वो आप कर लेंगे, right? हाँ, क्या हो गया?
ना, इसको भी कर दो एक से, ताकि यू हाइट कॉलम्स. So if I will analyze this one, so I have placed the Feb month data. So I need to find the March month date. Now, what the date you will get maximum in this method, what you have to do, you have to find two dates. First of all, 1 to 15 dates you have to find, and then 16 to 30. First half, second half, you need to find these two dates. So first of all, और जो हमारी डेट सबसे ज्यादा होगी उसी को हम लोग करेंगे. अगर कंफ्यूजन डेट है तो हम लोग मून साइकिल से देखेंगे, इससे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई एम वाचिंग हियर. 5 मार्च इज देयर. 5 मार्च इज देयर. इज देयर एनी 5 मार्च? सबसे पहले देख लेंगे कि 5 मार्च क्या मार्केट में हॉलीडे है. यस सर. नो, नो, इट इज नॉट हॉलीडे. अच्छा, नहीं. हॉलीडे नहीं था, नहीं. तो 5 मार्च की दो हमें कॉम्बिनेशन मिल रही है. एम आई गेटिंग एनी 5 मार्च? फोर्थ और सिक्स को हम लोग तब लेंगे जब मार्केट हॉलीडे रहे. अच्छा, यहाँ पर मैं एक ये करता हूँ ताकि वो थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे टेबल. इसको सीख लो ना. सो 5 मार्च, इज देयर एनी 5 मार्च अवेलेबल? नो. फर्स्ट मार्च. So, to make any TCD date combo tradable, you need minimum 3 combo होना चाहिए. कोई भी TCD कॉम्बो डेट, तो अगर हम लोगों को जैसे सपोर्ट में अगर वो 2 से ज्यादा नहीं होता है तो हम लोग उसको मिनिमम 2 और 3 हम लोग सपोर्ट मानते हैं. फर्स्ट ये सपोर्ट यहाँ लिया, सेकंड ये. नाउ फोर्थ टाइम आई कैन सपोज दैट इट इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो मिनिमम इसमें हम लोग 2 मानते हैं. और अगर ये 3 4 हो तो इट इज मोर एंड मोर पावरफुल. But we need minimum 2 times market respect this level, so we will believe it is a strong support. Similarly, in the combo method TCD, we need at least 3 common dates using a different method. Then we will believe कि it is the powerful date. तो 3 डेट हमें अलग अलग मेथड से सेम होने चाहिए, मिनिमम 3. उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है. तो आई हैव नॉट, आई एम नॉट गेटिंग हियर एनी 5 मार्च. ओके, तो 5 मार्च को कुछ नहीं है ना. देयर इज ऑल्सो 7 मार्च एंड 7 मार्च. इज देयर एनी? पहले 7 मार्च देख लेते हैं, मार्केट हॉलीडे है क्या? यस, 7 मार्च मार्केट हॉलीडे. तो 7th एंड 8th मार्च बोथ डेट कॉम्बिनेशन, मतलब जो डेट. एक सेकेंड, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड. गिव मी 1 सेकेंड. The common date of 7th March, also 8th March, its entire impact will be on 9th. तो 7 और 8 की जो मैक्सिमम डेट्स निकलेगी, वी विल ट्रीट इट एज ए सिंगल डेट. एंड मतलब 7 8 9, तीन तीनों डेट को हम लोग एक ही डेट मानेंगे, दैट इज द 9th. बिकॉज मार्केट हॉलीडे, सो इट्स इम्पैक्ट विल बी ऑन 9th. So seventh की I have got these two date. Another 7th, 8th or 9th we need. 9th March I can watch it there. 9th March is there. No. आपको कुछ भी दिखाई दे रही है? मैं अगर टेबल को बड़ा करूं, कॉन्फॉर्मेशन टेबल में भी आप देख सकते हैं. सर, 7th मार्च को भी आप 9th मार्च कंक्लूड करेंगे ना सर? हाँ, हाँ, हाँ. तो 2 7th मार्च भी है सर इसमें फर्स्ट टेबल में. हाँ, दो 7th मार्च है और एक 9th मार्च है. तो हमारी 3 कॉम्बिनेशन हो रही है, और भी देख लेते हैं क्या हो रही है. 7th 8th की कुछ अगर डेट मिल जाए, आई थिंक सो. 8 की नहीं है, ओके. फर्स्ट मार्च नॉट रिक्वायर. 27 फे 9th मार्च इज ऑल्सो इन दिस टेबल. ओके, नाइस. सो आई हैव गॉट द 4 कॉम्बिनेशन ऑफ द 9th मार्च. सो 9th मार्च which, based on this Gann angles tabular data, we can say Nifty has formed a
निफ्टी हैज मेड अ 4 कॉम्बो। निफ्टी ने 4 कॉम्बो बनाया है। दैट दैट डेट इज 9th April। Nifty has made the 4 combination of data. So the next date Yes, of, 9th March. oh sorry, 9th sorry, sorry, March. 9th March. 9th March Nifty has found based only on this data। अभी मेरी मून साइकिल ये सब बाकी है, ठीक है। बेस्ड ओनली ऑन दिस गैन एंगल की जो हमारी डेटा है, उसमें निफ्टी ने 9th March को हमारे लिए एक टीसीडी कॉम्बो बनाया है, ठीक। नो, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आई हैव गॉट दिस, ओके। ट्रेड कैसे लेना नहीं लेना वो मैं बाद में आते। नो, अनदर यू हैव टू फाइंड आफ्टर 15th। मतलब फिफ्थ का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको मार्केट ब्रेक करेगा, टारगेट देगा, स्टॉप लॉस देगा, इट नीड्स टाइम। So you need to find the another data after 15th, that will be superb. So after 15th means 14th March। 14th भी सर होने से 12th होगा, कोई मार्च के दिक्कत कॉम्बो है सर, चार। नहीं। 12 मार्च थोड़ा वो ज्यादा मतलब कि ना नियर बाई में आ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मतलब कि डिस्टेंस में आए, मतलब वो ओके। जैसे आफ्टर 15th आए तो ज्यादा अच्छा होता है। आफ्टर 15th 18th मतलब ऐसा। 12 ओके। में वो यस, I can watch it there 16th March. Okay, nice. 14th March. I can watch also 14th March. नो, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 21st March इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेट होता है। 21st March, तो अरे, 21st, है ना? नहीं, 21st, खत्म। ओह वो मेरे लिए, देखिए, मैं अच्छा ठीक है, आपका नहीं है बाबा। 21st March ऑल्सो बेस्ड ऑन, अगर आपको निफ्टी में निकालना है तो गेन स्टैटिक डेट के साथ ये ऑटोमेटिक कॉम्बो बनता है, जिसके बाद आज मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज। सो 21st March इज ऑल्सो इन माई, अच्छा, कॉन्फर्मेशन टेबल का सारा डेटा अपने आप में यूनिक है। आप इसको चाहें तो आंख बंद करके भी ट्रेड कर सकते हैं। 21st March, 23rd March मीन्स 21 to 23rd March यू कैन से अ सुपर ट्रेंड चेंज डेट। इसके साथ में अगर ऊपर में कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ कोई कॉम्बिनेशन 22 मार्च, 22 मार्च, नाइस। नाउ सो आई कैन से 21 to 23rd March, ये 3 दिन का कॉम्बिनेशन, इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी 23rd March, ये सॉरी 21st March मार्केट हॉलीडे शिट। खैर, नो प्रॉब्लम। सो इट क्रिएट्स अ सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ द डेट्स ऑन योर 23rd March। सो कॉन्फर्मेशन टेबल का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, रेदर देन ये वाले सारे टेबल से। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द गैन एंगल्स ऑफ 225 जो मैंने अभी दिखाया, हाइडेड प्लस स्क्वायरिंग रिलेशन, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। जैसे फेब मंथ की कोई डेट मिली है, 27th फेब, उसकी इंपॉर्टेंस भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगी। मतलब मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद में एक जो शार्प रैली हो सकती है, यू विल दिस, तो you have to give the also priority of these dates based on not only this date combination, also try to include confirmation table date to सर कंफर्मेशन टेबल डेट कहाँ से आएंगी? फॉर एवरी ईयर हैज मैंने टू बी न्यू। मैंने अभी दिखाया है वो सर, यहाँ पर हाइड है, इसको अनहाइड करेंगे तो ये सारी टेबल आ जाएगी जहां से वो डेट को लिया गया है, ठीक है, कॉन्फर्मेशन टेबल के एंगल से, ठीक है। हेलो, ठीक है, ठीक है। सर इसमें आपने जो जैसे ये सेंटर 0 डिग्री डेट लिया है 3/2/26, ये कैसे मेंशन किया है सर आपने? मैंने दो अलग अलग डेट लिया है, 3 to 26। फर्स्ट मैंने यहाँ पर हाई डेट को
सेंटर पे रखा है, ठीक है। ओके सर, गैन ओके। एंगल्स की हाई डेट्स को सेंटर पर रख के मैंने इंक्रीज किया है। तो 225 डिग्री पर फर्स्ट डेट आई हैव गॉट 11/2/26, 11 फेब, क्लियर। सेकेंड इस पर मेरे को मिला है 27/2/27 फेब। देन आई हैव गॉट हियर, ठीक है सर, ओके सर, क्लियर। ओके। 20 ना। एंड अनदर सीट दैट इज ऑल्सो हाइट, कॉन्फॉर्मेशन टेबल में बहुत अच्छे सुपर डेट्स ऑटोमेटिक वो निकलते हैं। गैन की ये एंगल्स पर जो आते हैं बहुत अच्छे डेट्स निकलते हैं ना। और गैन एंगल की डेट्स की जो लो है, वेयर आई हैव टेकन सेंटर डेटा एज द लो, मंथली लो पर जो मैंने सेंटर की डेटा को प्लॉट किया है, उससे हम लोग 1 2 3 4 इंक्रीज करके अगेन आई हैव गॉट दिस एंगुलर डेट्स एंड आई हैव प्लेस्ड इट हियर 6 डेट। इसके बाद क्या है कि डेट फिर आगे निकलना स्टार्ट करती है, तो वी नीड द लेटेस्ट डेटा। नाउ इट इज क्लियर यस सर। वेयर यू, कि ये डेट यहां से आ रही है। मैं इसको सर हाइड कर देता हूँ, कंफ्यूजन लगता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड द डेट 21 से लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल 7 मार्च, एंड देन आई हैव गॉट द डेट 21 to 23 मार्च। बट बेस्ड ऑन दैट another date has also importance, 22 April date is also important based on the confirmation table ना। अभी जैसे सपोज मैं अगर बात करूं, तीन चार एग्जांपल देखेंगे तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सपोज आई हैव टेकन के आई एंटरप्राइज, यू कैन से एनी मंथ, यू से एनी मंथ, कौन सी मंथ की, पहले फिर हम लोग अप्रैल की भी निकालेंगे, सर दिसंबर। दिसंबर की, चलो जनवरी की कोई निकाल बात। लेते हैं। जनवरी के निकालते हैं, तो जनवरी के लिए हमें क्या है कि ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस मंथ की एंटायर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, कि प्रीवियस मंथ की लेटेस्ट डेटा व्हेन इट हैज मेड द हाई एनुअल नाउ। सो व्हेन इट हैज मेड द हाई, इट हैज मेड द हाई हियर, हाई ट्वेंटी वैल्यू कोई सेकेंड मेरे को दिसंबर बोल। नहीं नहीं, पहले सर हाई की वैल्यू क्या है, फोर 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 एट फोर एट जीरो जीरो पॉइंट सेवन जीरो 4480.70, 4480.70। अच्छा, कोई अगर मेरे को डेट बताएं जो मतलब लैपटॉप पर बैठे हुए हैं तो अच्छी होगी। 22 ट्वेंटी मंथली दिसंबर सेकेंड दिसंबर सर। 22 December 26 ना। मंथली लो 25 प्राइस 25 सर, दिसंबर 25। 22 है ना। ओह अच्छा अच्छा सर अच्छा, ईयर इज ये वाला 25। 25, ईयर ईयर, ओके। अच्छा, सर मंथली लो मंथली लो प्राइस इज 3929। 3929 नहीं है सर, नो। पॉइंट नहीं है, थ्री नाइन टू अच्छा ठीक नाइन है, और 10th of December 25। 10th December 25 ना। हाउ मेनी ट्रेडिंग डेज बिटवीन दिस एंड दिस, +1 कर दीजिएगा, जो आएगा उसमें +1 कर दीजिएगा। सर 10 ट्रेडिंग डेज। 10 trading days now, I have placed the December month data, so you have to find। अच्छा, सबसे पहले कॉन्फॉर्मेशन टेबल की माने तो इसने सबसे पहले जो हमारी जनवरी मंथ का डेट दिया वो है 3rd Jan। तो अगर 3rd Jan की डेट के साथ अगर इस पर सॉरी सर, बिलीव 9 बार करें, आया। 9 बार। नहीं, 9th में शायद +1 करना, हाँ 9th बार आया, सॉरी 9 बार आया सर, बार, सॉरी। 9 बार आया है ना। तो हियर इट हैज गिवन, ओके ठीक है, ज्यादा वो मतलब कि ना चेंज नहीं हुआ। 3rd Jan, 15th Jan, 27 Jan। तो कॉम्बिनेशन बनाने का और एक तरीका है कि अगर मुझे पता है कि 3rd Jan इज माई सुपर डेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट कॉन्फॉर्मेशन टेबल के अकॉर्डिंगली, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 3rd Jan, मतलब हम लोग यहां से रेफरेंस नहीं लेंगे, हम लोग रेफरेंस लेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, इसकी एक्यूरेसी, बिकॉज डेटा इज बेस्ड ऑन योर WD गैन की स्क्वायर मेथड पर। एक तो 225 पर प्लेस्ड है, और जो नंबर्स है मतलब डेट्स है ऑटोमेटिक
दे हैव स्क्वायरिंग रिलेशंस, ये मैंने पहले क्लास में ही बताया था व्हेन आई हैव टेकन गैंजिला सेक्शन ना, ये सॉरी सेशन। सो हियर थर्ड जैन इज देयर, सो कैन यू वॉच एनी थर्ड जैन? सबसे पहले थर्ड जैन को देख लेते हैं कि मार्केट हॉलीडे है क्या। यस, मार्केट हॉलीडे। सो थर्ड जैन इम्पैक्ट विल बी ऑन थर्ड एंड आंसर फोर्थ कॉम्बो एंड फिफ्थ कॉम्बो, तीनों की कॉम्बो वो मतलब फिफ्थ को बनेगी। तो हियर आई कैन वॉच थर्ड, आई कैन वॉच थर्ड हियर, 1 2 3 4 देयर, एंड ऑल्सो फाइव फोर्थ ईयर। जय, 5 जैन भी है सर। फाइव इज ऑल्सो देयर सर। फोर्थ है, फाइव्थ है। तो मोटा मोटा अभी 6 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन गए हैं, और 6 के बाद फोर्थ, फोर्थ फोर जैन जैन। यहाँ पे भी है सर। फोर्थ जैन है इसमें भी, और हाँ, तो सेवेंथ कॉम्बिनेशन बन गए हैं। तो आई कैन से कि थर्ड जैन हैज मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट वेयर मार्केट कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ रिवर्सल और स्विंग टॉप एंड बॉटम। सेकेंड जैन, फोर्थ को मार्केट क्लोज है, तो फिफ्थ जैन इज माई डेटा आई हैव गॉट नाउ। सो द इफेक्टिव वे टू मेक द कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें से लेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसमें से क्यों नहीं लिया जाए। नेक्स्ट इज सो 15th जैन। सो तो वी फर्स्ट ऑफ स्टार्ट ऑल फ्रॉम कंफर्मेशन टेबल। इट विल बी बेस्ट, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। थर्ड जैन लिया, यहां से मैंने आराम से कॉम्बिनेशन, अब यहां से लेकर कर यहां मैच करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये वाली टेबल में काफी सारा डेटा है। यहां पर मेरे लिए डेटा नीट एंड क्लीन है, और इसकी जो यस। मेथड्स है वो पूरी अलग है। वो गैन हाई डेट्स लो डेट्स की कैलकुलेशन पूरी अलग से मैंने लिया हो। राइट सर। तो यहां से लेंगे, और हम लोग मतलब ये मतलब कि ना, आगे हम लोग देखेंगे कॉन्फर्मेशन ना। 15th जैन अगर मैं देखूं, वेयर इज द 15th जैन इज देयर। अच्छा, सबसे यस पहले सर। देख लेगी, थर्ड। हॉलीडे को चेक कर लेना है, ठीक है। 15th जैन नहीं है, तो इज देयर एनी एग्जैक्ट 15th जैन, वन कॉम्बिनेशन, टू कॉम्बिनेशन इज 15th जैन, एनी एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन अगर दिखाई दे तो बोले। दो तो मेरे को मिली। नहीं सर, दो ही है। एनी मैं तो दो ही है। 13th जैन। अच्छा, एक हम लोग टेस्ला नंबर लेते, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, कि तीन अगर डेट्स नियर बाई हो तो तीनों डेट्स को हम लोग एक डेट कंसीडर कर सकते हैं। वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो एक टेस्ला नंबर है। तो सपोज नहीं है, लेकिन और अगर एक होती तो दिस 15 will be also tradable, so you can also mark this 15th Jan where it is 15th Jan मार्केट हॉलीडे, 15th Jan मार्केट हॉलीडे है, 16th Jan, यस सर। 15th Jan सर महाराष्ट्र मार्केट। इलेक्शन डेट वाज दैट 15 जन। हाँ, महाराष्ट्र इलेक्शन डेट, तो हम लोग 16th को, 16th की भी कॉम्बिनेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैंने आपको मेथड्स बता दिए ना। अनदर कॉन्फर्मेशन टेबल इज इंडिकेटिंग 27th Jan एंड ऑफ द मंथ, ओके। तो कैन आई वॉच देयर एनी 27th Jan? अगर यस सर, एक मिलती है तो सबसे ऊपर अच्छा। है डेट 4 में सर। फर्स्ट टेबल में। फर्स्ट टेबल में 27th Jan, ओके, नाइस। 27th, एनी 27, 23rd Jan। अच्छा, अगर यहां से नहीं मिलता है तो फिर हम लोग ऊपर से बनाएंगे, ट्वेंटी लाइक यूर सेकेंड और सर। 23rd की 23rd, चार से दो ट्वेंटी दो है थर्ड सर। पहले 27th की देख लेते, जब मैंने एक मेथड से कैलकुलेट कर रहा है, अगर नहीं मिलेगी तीन कॉम्बिनेशन तो हम लोग ऊपर से, मतलब आप सपोज यहां से बनाए, यू हैव गॉट अ सुपर ट्रेड्स हियर, यू ऑल्सो हैव गॉट अ नाइस ट्रेड हियर। अब हम लोग यहीं से बनाएंगे, अगर यहां से तीन चार कॉम्बो नहीं बनता है तो हम लोग अवॉइड करके फिर हम लोग अप साइड से बनाएंगे, क्लियर। यस सर। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको एक टाइम के बाद। तो ओके सर। अभी जैसे 27th Jan अगर मुझे को यहाँ जैसे दो मिला, आई हैव गॉट 27th Jan 2, और कोई एक मिल जाए तो हमें और मेथड से नहीं बनाएंगे, एक ही 27th Jan। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट हॉलीडे है क्या।
नो, नॉट हॉलीडे, सर ट्वेंटी फैब एट फैब दें सर आप। फिर देख लिया ना। नहीं, फिर भी नहीं है मार्केट हॉलीडे। अच्छा ठीक है, तो छोड़ दे, अवॉइड कर दे। बट 27 जैन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कॉन्फर्मेशन टेबल का डेटा मोर एक्यूरेट है rather देन एंगल्स। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। हेलो। यस सर। यस सर। जैसे कॉन्फर्मेशन टेबल का डेटा यहाँ की कैलकुलेटेड डेटा से ज्यादा एक्यूरेट आती है ये। मैंने कुछ नहीं तो किया, सर डेट लिया, लेकिन एक दो कॉम्बिनेशन अगर मिल जाते या अगर तीन कॉम्बिनेशन मिल गए, तो इस डेट को आप डेफिनेटली ट्रेड करिए। मैक्सिमम टाइम मार्केट फॉर्म्स एनी काइंड ऑफ स्विंग टॉप एंड सर स्विंग बॉटम ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू मेक कॉन्फर्मेशन और टू मेक कॉम्बो यूजिंग दिस रेफरेंस। इसको रेफरेंस ले, अप साइड में चेक करें। अगर नहीं मिलता है तो मून साइकिल में करें, जो मैं आगे मेथड्स पढ़ाऊंगा, और भी मेथड्स मैं बताऊंगा। अगर एकदम नहीं मिलते देन अवॉइड दिस स्टेट, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल सर सर। इसमें इनपुट डेटा हर में हमेशा मैन्युअली फिट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, क्योंकि डेटा चेंज हो जाती है ना, जी सर। स्टॉक्स की डेटा अवेलेबल नहीं रहती है वो। फ्यूचर्स की डेटा फिर भी अवेलेबल रहती है, स्टॉक्स की डेटा मतलब मंथली एनएससी में भी नहीं रहती है वो, ठीक है। जी। तो इसमें आपको मैनुअली, लेकिन इसमें एक चीज का सुविधा ये है कि अगर जैसे सपोज कि इफ यू हैव टू प्लान ट्रेड, तो आपको 200 स्टॉक्स की बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेदर देन ट्रैकिंग 200 स्टॉक, मैं नॉर्मली 40 का करता हूँ। मैं वही अंबेर, हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर, बीएसी, एमसेफ। तो 200 स्टॉक्स को मैं क्यों ट्रैक करूं और मैं जी क्यों सर। अननेसेसरी मेहनत करूं। मंथ एंड कंप्लीट हो गए हैं, आई हैव टू ट्रेड ओनली, जैसे मेरी 2 लाख की कैपिटल है। नाइस। मैं 2 लाख की कैपिटल से अगर सपोज 50,000 से इंट्राडे करता हूँ और बाकी से मैं अगर स्विंग करता हूँ, ठीक है, फ्यूचर करूँ जो करूँ मैं सर, कैश जी में लूँ, डिलीवरी लूँ, जो। तो अभी जैसे क्या है कि इंट्राडे के लिए मैंने अपने अकॉर्डिंगली लॉट साइज निकाल रखा है। जैसे मेरे को ज्यादा मतलब कि ना, ठीक है, बड़ी मतलब कि ना लॉट साइज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 200 300 तक सही है, 2 लॉट 4 लॉट मैंने ले लिया पहले, जैसे अभी जैसे अम्बेर की 100 की है, 5 लॉट भी लेंगे तो 500 क्वांटिटी होगी। दैट इज ऑल्सो की ट्रेड मेरे मतलब इतना नहीं मैंने ले लिया कि 6,000 क्वांटिटी ले लिया, अब वो मेरे को पैनिक कर रहा हो, जी ऐसा सर। नहीं। तो सपोज इंट्राडे के लिए मैंने 10 स्टॉक निकाल लिए जो मेरी क्वांटिटी, जिनकी मेरे अकॉर्डिंगली इट इज सुटेबल, ओके। और स्विंग के लिए मैंने 20 स्टॉक निकाल लिया। तो ये टोटल 30 स्टॉक्स को ट्रैक करने में, एक डेटा को ट्रैक करने में आपको 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। अगर यस आप सर। मतलब कॉन्फर्मेशन टेबल से अगर ले, ऊपर से नहीं ले, तो कॉन्फर्मेशन टेबल में मैक्सिमम 1 to 2 मतलब कि ना डेटा मिलेगी, उसकी कॉम्बिनेशन बनाए, नोट डाउन। तो इफ आफ्टर द एंड मंथ 1 से 2 तारीख को लेकर के बैठेंगे, तो टोटल 5 आवर्स में यू हैव ऑल द एंटायर मंथ डेटा ऑफ 30 स्टॉक्स कॉम्बो। सर आपने कोई ऐसी दो, लिस्ट बनाई है क्या सर, 30 से 40 स्टॉक्स की, जो आपको लगता है कि इनमें अच्छा मोमेंटम हाँ, होता है? हाँ, इंट्राडे के लिए भी है, स्विंग के लिए भी है, मेरे तो क्या पास है, आप मैं हमारे उसको साथ शेयर शेयर कर कर दूं। सकते हैं सर? बिल्कुल 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 शेयर कर देंगे, लेकिन कॉम्बो वाली आप अपने से बनाएं। नहीं सर, डेटा मैं हम लोग आपको निकाल लेंगे, मैं डेटा का आपको इशू नहीं मैं है। आपको मैं आपको नेक्स्ट क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी एफर्ट आप लोग करें, मैं आपको नहीं नहीं सर, बेस्ट डेटा हम लोग मेथड दे रहा निकाल हूँ। लेंगे, आप खाली स्टॉक लिस्ट बताएं। स्टॉक्स की लिस्ट तो अभी जैसे आप 5 मिनट करके आप करते हैं। मैंने मान लिया कोई इंसान स्लो है, ठीक है, एक स्टॉक्स को एनालाइज करने में 10 मिनट्स लेता है, फिर वो उसको डायरी में नोट करता है, डेट को, या एक्सेल में नोट। तो अगर वो 3 घंटे एफर्ट करता है, तो 1 आवर में 6, तो 3 आवर में 18 ओ स्टॉक्स को आराम से, आहिस्ते सर, आपने तो खाना खा लिया, हमने भी खाया भी नहीं है। तो एक एक घंटे में अगर वो 6 स्टॉक्स एनालाइज करता है, तो 5 घंटे में
30 स्टॉक्स, और 30 स्टॉक्स को इंट्राडे और स्विंग पर सारा उसकी मंथ की कॉम्बिनेशन उसके पास में अवेलेबल है। बस उसको उस पर्टिकुलर डेट को एनालाइज करना है। उसमें उस पे वो आराम से मैजिकल टाइम निकाले, या ज्ञान टीसीडी लेवल निकाले, या फिर एसएस विक्स लगा ले, या पीओबी लगा ले, उसको ट्रेड करे। और जैसे मैंने अंबेर दिया, ये दिया, आराम से मतलब कि ना करे ना, क्या दिक्कत है। दो में तो अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी उसको। तो यू जस्ट मेक, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग व्हाट एक्चुअली आई डू। अप साइड से नहीं करे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नीचे से रेफरेंस ले, अप साइड से कॉम्बिनेशन बनाए, एंड देन ट्राई टू प्लान टू टेक द ट्रेड। अगर तीन कॉम्बिनेशन नहीं आती है, अवॉइड दिस ट्रेड सो कॉन्फर्मेशन। क्या दिक्कत है, बहुत स्टॉक से। सध्या बॅग ನೋಡ್ದಲ್ವಾ नाउ इट इज क्लियर सर। थोड़ी यस मेहनत सर। करेंगे, स्टॉक्स की लिस्ट में आज ही शेयर कर यस दूंगा। ಊಟ ಓಡ್ थोड़ी ಬಂದೆ मेहनत ಓಡ್ सर करेंगे ये सर। डेली डेली टाइम फ्रेम पे ही करना है ಮೀಟಿಂಗ್ सर अभी। ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರ್थिक सर मैं अभी इंट्राडे मैंने पढ़ा दिया, इसे पढ़ा दिया है, तो ये आपको अभी मैं सर, ठीक है, पोजिशनल की क्लास में है, तो आप कॉम्बिनेशन निकाले, और मैं आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उस पर्टिकुलर डेट को इंट्राडे पर कैसे। अभी जैसे मैंने अंबेर का दिया आज, मतलब अर्ली मॉर्निंग में 7 कॉम्बो, तो ये जो 7 कॉम्बो है, इसको इंट्राडे पर कैसे ट्रेड करें वो मैं बताऊंगा, और उसको स्विंग पर कैसे ट्रेड करें वो भी मैं बताऊंगा, पोजिशनली इंट्राडे प्लस स्विंग। ठीक है। तो आई थिंक कि एक्सेल इज वेरी वेरी सिंपल, फॉर्मूला इज ऑल्सो सिंपल, यू कैन मेक इट योर सेल्फ, अपने से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं कितना होगी। ओवर का? अगर इफ ओ सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने जिस मेथड से बना के रखा हुआ है और जितना सिंपल में समझाया, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट या प्रॉब्लम आएगी। मैं स्टॉक्स का लिस्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 30 35 40 स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैं शेयर कर देता हूँ। यस सर, श्योर सर। इंट्राडे में भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी, स्विंग में भी मिलेगी, लेकिन अभी क्या है कि ठीक है, डिक्सॉन जैसे है, तो कोई तो बंदा कैश में उसमें अगर 100 पीस बाई करेगा तो बहुत बड़ी कैपिटल लगेगी ना, तो यस। उसमें नॉर्मली एक लॉट फ्यूचर बाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन करने से ठीक है, स्विंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा क्यों, अच्छा प्रॉब्लम होता है वेन ईवर्डिंग। इंट्राडे के लिए तो मेरे पास में स्टॉक्स की मैं जो लिस्ट दूंगा, मोमेंटम स्टॉक अंबेर में आज आप लोगों ने मूवमेंट देखा, अभी मैंने 2 दिन मैजिकल हाई जो मैंने पढ़ाया था, उस पर मैंने लोगों को ट्रेड बता करके दिया कि ऐसे भैया ट्रेड होता है। तो आपको इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। स्विंग में अगर आप चाहें तो कैश में कुछ करें, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि व्हेन यू आर प्लेइंग ऑप्शन इंट्राडे, वो मतलब कि ना, ठीक है, पोजिशनली इंट्राडे में इतनी रिस्क नहीं होती है स्टॉक्स पर, आपको निकलने के मौके मिलेंगे, इट इज नॉट द इंडेक्स। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाई करेंगे तो पोजिशनली काफी बड़ी बड़ी लॉसेस भी हो सकती है। तो इट इज बेटर टू डू फ्यूचर रेदर देन ऑप्शन। तो हम लोग यस सर सर। थर्सडे को मिलेंगे अगेन, मॉड्यूल 3 की क्लास में, वेयर लास्ट इंडिकेटर आई विल टीच, एंड वन बीटीएसटी स्ट्रेटेजी ओटीएक्स इंडिकेटर आई विल टीच, अलोंग विथ एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैसे ट्रेड करने हैं। हम तो बॉटम तो इसके सर ये बाद टॉप टॉप एंड बॉटम बॉटम नहीं से, होगा सर, ये 2 वीक से, इसके लास्ट बाद 2 वीक से नहीं हो रहा है अरे ना पहले क्लास मैं सही से आगे की उसका। टॉपिक करूँ ना, पहले मैं आगे की टॉपिक कंप्लीट करूँ ना, बस लास्ट क्लास बचा हुआ है ओटीएक्स का, वो मैं कंप्लीट कर दूं, इसके बाद टॉप एंड बॉटम स्टार्ट करेगी, और कुछ बचा हुआ है सर है नहीं उसमें, और नहीं सर, करवाने वो में तो उसके सर लिए मेरे को वेट कुछ कर भी रहे हैं नहीं। हम लोग ना बहुत दिनों से, जो तो मतलब करे कर ना, रहे क्या हैं। दिक्कत है सर, पेशेंस के ही पैसे बनते हैं। आपको लगता है कि टॉप एंड बॉटम सीख लिया तो मेरी मतलब कि ना दुनिया की सारी समस्याएं सर खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। और समस्याएं समस्याएं तो आज भी कुछ है। भी सीखे खत्म नहीं होंगी सर। समस्याएं खत्म नहीं, बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी, होगी एक सर। ही चीज को मास्टरी करना, समस्याएं वहीं हाँ। पर खत्म होती है। सर वो रेदर ट्यूसडे देन और तो रेदर सैटरडे बोले थे क्लास होगी ना, तो वो क्लास नहीं हो रही है ना ट्यूसडे सैटरडे। नहीं, क्लासेस नहीं हो रही है तो ठीक है, मैं एक एक वे उसमें तो 5 6 क्लास ही है, वे 3 4 इंडिकेटर की है,
तीन चार टॉप एंड बॉटम के क्लासेस तो है ही नहीं उसकी क्लासेस। जो उसमें सिंसियर करने वाली क्लासेस है वो है टॉप एंड बॉटम की, और बाकी सब इंडिकेटर की क्लासेस और ये है। नाउ तो नहीं, लास्ट एक क्लास के बाद में टॉप एंड बॉटम की चार क्लास में वो मैं लूंगा। तो तीन या चार। तो अभी जैसे रेदर देन लर्निंग, आई एम अ मेंटोर, मैं तो मेंटोर हूँ, मतलब कि ना मेरे को सब चीज रखनी होती है, कुछ इंट्राडे, कुछ फॉरेक्स, कुछ बीटीएसटी, कुछ फलाना, कुछ ढिमका, और मेरे यहाँ पर सभी है, ठीक है। बट रेदर देन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर डूइंग मास्टरी इन एनी वन थिंग इट विल बी बेस्ट। अगर आपको इंट्राडे ही अच्छा लगता है कि नहीं सर का गैन टीसीडी लेवल अच्छा है, या सर के जो इंडिकेटर है मैजिकल हाई लो उसके साथ पीओबी कनेक्ट कर वही अच्छा है, तो भैया उस पर ही मास्टरी कर लेना, क्या दिक्कत है इतनी सारी चीजें सीखने का। पैसे बस सर बनाने यही के गुरु लिए एक मंत्र चीज है। है। हम्म। यही गुरु मंत्र है, बस एक चीज पे मास्टरी चाहिए था। नहीं, सबसे पहले अपने आप को परिभाषित करना, डिफाइन करना है कि मतलब क्या करना है मुझको। अगर फॉरेक्स गोल्ड करना है, इंडियन मार्केट नहीं करना है, फॉरेक्स गोल्ड में क्या करना है, पोजिशनल करना है कि इंट्राडे करना है, इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे की मैं जो टॉप एंड बॉटम मेथड बताऊं, या मैं और एक मेथड मैंने कमिटमेंट किया हुआ है जो मैं सुपर मैं ब्रह्मास्त्र मेथड बताऊं। तो अभी अभी सर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली मेथड बहुत अच्छी है, ब्रह्मास्त्र है, लेकिन क्या वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी? ऐसा तो नहीं भी हो सकता है ना अवधेश सर, हेलो। यस सर। मेरी मेथड बहुत अच्छी है, मैंने आपको ये बोला, लेकिन उस मेथड पर जब आप अपनी माइंड को सेट नहीं करेंगे, उस मेथड पर जब आप एक्सेल में नहीं लिखेंगे टोटल मंथ्स कितनी ट्रेड मिली, कितने में 1:2 मिले, कितने में 1:1.5 मिले, कितने में मैंने ट्रेल किया तो 1:6 तक मिले, कितनी एक्यूरेसी है इस मंथ, नेक्स्ट मंथ इसकी एक्यूरेसी क्या हो रही है, मैं कितना पॉइंट नहीं, नेक्स्ट मंथ इस, तो ऐसे धीरे धीरे मास्टरी करेंगे तो उस पूरी मेथड पर आप एक दिन मास्टर हो जाएंगे और वो पैसे बनना शुरू हो जाएगी। यस सर, एग्री। तो अभी सर बोलेंगे कि आपने तो इतना कुछ सिखा दिया, अभी मेरे लिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैंने इंट्राडे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, टाइम कैलकुलेशन, प्राइस कैलकुलेशन, बीटीएसटी पढ़ा दिया, इंडिकेटर्स पढ़ा दिया, बट इतनी क्यों सीखनी है ट्रेड के? मैं तो खुद नहीं करता। मैंने आज जो ट्रेड किया वो मैंने मैजिकल हाई लो पर किया, VWAP के साथ में किया। तो अभी जैसे सीखनी क्यों है, करनी क्यों है? पढ़ने के लिए चीजें बहुत अच्छी है, नोट्स बना कर रखे अलग बात है, लेकिन जब मुझे करनी है, सर ने अभी जैसे बोला एस्ट्रो में, ठीक है, रेडिक्स बताएंगे, ट्रांजिट पूरी 10 साल की साइकिल निकल जाएगी। तो उसी 10 साल की साइकिल पर अपनी अगर 200 स्टॉक या 100 स्टॉक निकाल करके रखें, उसको ही करे ना ट्रेड, हर साल करे ना, 100 ट्रेड्स तो बनेंगे कम से कम, ये सुनो, यस सर। इंट्राडे में भी बनेंगे, स्विंग में भी बनेंगे, तो 100 ही करनी है ना, क्यों करनी है ज्यादा अपने आप? तो रेदर देन लर्निंग, लर्निंग के लिए सब सही है, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। इंसान जिस दिन लर्निंग से रुक जाता है, लर्निंग और स्टॉक मार्केट की लर्निंग तो जिंदगी में नहीं रुकनी चाहिए। ये मार्केट यस। डायनेमिक है। अवधेश सर आपको पता होगा कि जब हर्षद मेहता के टाइम पर जब सर क्या हुआ था, ठीक है, घंटी बजती थी तो लोग सर जी। बाई करने आते थे, मैनुअल यस। लोग। वो यस। एक दौर था। इसके बाद अलग अलग दौर आया, लोग जाते थे, ठीक है, ब्रोकर के पास में, वहां पर बैठे रहते थे, दिनों हाँ, दिन हो फोन गया करते ये थे। ले लो, फोन करते थे, ये वो एक दौर था। आज मोबाइल का दौर है, इसके बाद एआई का, इसके बाद इंडिकेटर का दौर आया, इसके बाद ऑप्शन का दौर आया, अभी सर एआई की दौर शुरू हो गई है। तो ये स्टॉक मार्केट डायनेमिक है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, बट लर्न करते रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मास्टरी किसी एक दो चीज पर ही करें, रादर यस सर, देन एग्री सर। सर नॉट। मुझे तो लगता है जस्ट फोकस ऑन एक दो तीन स्टॉक पकड़ लो, वही काफी है। अल्टीमेटली खाली आपको। डिक्सॉन करे, मैं तो बोल रहा हूँ इंट्राडे करनी है, अंबेर, डिक्सॉन, जो मेरे साइज के अकॉर्डिंगली, मेरे को क्यों फोकस करना है ज्यादा, कॉम्बो बनाना ये बनना यस। है? भैया मैंने सीधा इसको पकड़ लिया, इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर से मैंने लगा लिया, चलो कोई बात नहीं, मैजिकल हाई लो पीओबी मैंने लगा लिया, मैजिकल हाई और इसको वो। ट्रेड, बस बात खत्म। मतलब
उतनी करनी ही क्यों है? और साथ में कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने सर वीवैप लगा लिया, पीओपी लगा बस लिया। बात खत्म। पीओबी लगा लिया। करनी क्यों है भैया? सारा दिन में तो एक ही ट्रेड करनी है मुझको, इंट्राडे में तो 50 करनी नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सीखना अलग है, सीखनी है, सीखें, कोई इशू नहीं है। मैं किसी को, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन लर्निंग होने से अगर अर्निंग्स होती तो ये भी एक मीथ है। लर्निंग तक लर्निंग सही है, अदरवाइज थिंग्स विल बी। अगर आपने टॉप एंड बॉटम ही सीखा है तो उस पर भी सर आपको अपनी माइंड को सेट करनी होगी ना, मास्टरी करनी होगी आपको। यस सर। मैंने तो 4 क्लास में सिखा दिया, लेकिन मैं जो ट्रेड करता हूँ ये मेरी सालों साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये एकदम से मैंने बता दिए भैया। जब बाजार में आगे की कोई सर ये नहीं रहती है ना, तो ये टॉप है, ये सर हम्म। बताने में अच्छी अच्छी लोगों की 12 बज जाती है। अभी सर देख करके अच्छा लगता है कि यहाँ पर टॉप था, लेकिन जब आगे की डेटा नहीं है ना तो ये टॉप है, कोई नहीं बता सकते। वैसे पुराने डेटा पे तो कोई भी बता देता है, यहाँ पे खरीदा यहाँ इसीलिए पे मैं बेच बोल रहा दिया। हूँ ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि टॉप एंड बॉटम में भी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कुछ मेथड्स बताऊंगा, कुछ मतलब कि ना डिफाइंड रूल्स बताऊंगा कि ये अभी के लिए टॉप है, यहाँ से अगर इसका लो ब्रेक होता है तो अच्छी खासी रिवर्सल मिल सकती है, यू कैन गेट। बट एवरी टाइम की ये सारी चीजें काम करेगी नहीं। इस पर ट्रेड करने का एक ही बेनिफिट है कि आपने अगर बॉटम पर बाई किया है तो मैक्सिमम टाइम मार्केट में आपको जो प्रॉफिट कैप्चरिंग होगी वो थोड़ी बड़ी होती है। आपने अगर बीच में कहीं पर कूदा है तो चांसेस कम होते हैं, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट कैप्चरिंग की चांसेस बड़ी होती है, rather than doing all these things। सर मैं वो फॉरेक्स और ये गोल्ड के लिए ही ज्वाइन किया था, इसीलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। और क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं बोल रहा था जो मैं वो कब आप तक हो रहें, जाएगा आपकी इसीलिए। 4 मंथ की सेशन है, आराम से हो जाएगी। किस मंथ नहीं सर, अभी अपने तक लिए ऐसे ट्रेड जो? नहीं कर पा रहा हूँ ना, इसीलिए मतलब नहीं 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 फरवरी में, नहीं। फरवरी में। हाँ तो फरवरी में लिया है तो मैंने सर गैन टीसीडी लेवल भी शेयर किया 100 यूएसडी पर, उसमें आप करें ना ट्रेड, क्या और प्रॉब्लम सर है? ये बोले थे फॉरेक्स कम्युनिटी 5 तारीख से, ये 5 अब मई इससे बनाएंगे, अप्रैल से। बनाऊंगा, लेकिन मैंने सर बना नहीं पाया। तो अभी जैसे सपोज आपको अगर मैं बोलूं कि पीओबी पर ट्रेड करें, तो छोटी छोटी, देखिए आप सोचेंगे कि मैं एक चीज सीख करके ट्रेड करूंगा, ये एक सर रॉन्ग बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको छोटी छोटी ट्रेड्स किसी किसी चीज पर आपको करनी होगी, गारंटी सीडी हो या मतलब कि ना मैजिकल टाइम हो या कुछ भी हो, उस पर आपको छोटी छोटी ट्रेड्स करे, कम लॉट में करे, बट ट्रेड्स करे, रोके नहीं। 0.01 लॉट करे, कितना ही जाएगा भैया, करे, क्या दिक्कत है? तो छोटी छोटी ट्रेड्स के लिए मैंने काफी सारी चीजें आपको शेयर किया हुआ, प्राइस लेवल, मैजिकल टाइम, गैंजिला टाइम, ये सब कुछ शेयर किए हुए हैं। और सर टॉप एंड बॉटम के लिए अभी आपकी फेब की बैच शुरू हुई है, अभी मार्च अप्रैल मई तक समय है, 4 मंथ्स का कोर्स है। इससे पहले ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है सर। सर ये टीसीडी कॉम्बो है जो हर एवरी मंथ निकालना है, या इसमें तो डेट आगे की भी आ रही है? नहीं, आपको एक ही मंथ का निकालना है, लेटेस्ट डेटा लेकर के। नेक्स्ट, आपको सर नेक्स्ट मंथ का निकालना, आगे की भी डेट आएगी, लेकिन हाँ। छोड़ देना, क्या ओके। दिक्कत है, छोड़ दे। अभी ओके। जैसे लेटेस्ट डेटा, अभी जैसे अप्रैल के निकालने हैं तो मार्च की लेटेस्ट डेटा को पुट कर, इट विल गिव मोर एक्यूरेट rather ओके। देन मोर सर पास्ट डेटा, ओके। एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ओके। अभी आपकी अप्रैल अभी बिगिनिंग है, तो मॉड्यूल 3 मार्च की की। एक क्लास के बाद में टॉप एंड बॉटम एस्ट्रो सेक्शन आराम से हो जाएगी, 4 मंथ से पहले आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी सर। 50% ऑलरेडी कंप्लीटेड है वो। ठीक। तो आज की सेशन एंड करते हैं सर, आप लोग थोड़ा मेहनत करें, कल हम लोग मिलेंगे, इसके बाद टीसीडी कॉम्बो में मिलेंगे सर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर राइट थैंक सर, यू। राइट सर, थैंक यू।